Hi friends, I am Dr. Prabhat. In last lecture, we have seen the olfactory tract and cerebrum of the forebrain, and one part of the forebrain has been left, and that is diencephalon. So in this lecture, we will be doing the diencephalon. Already we have seen this slide in the last lecture that forebrain has been divided into three parts. One is the olfactory tract zone, which we have seen. Other is the telencephalon, also known as cerebrum. Again we have done this. So now we are left with this diencephalon part. So let's start. The first thing, that diencephalon is the part of forebrain, and diencephalon is made up of three components, and these components are epithalamus, thalamus and hypothalamus. नाम से पता चल रहा है, thalamus is sitting in between, epi means above thalamus and hypo means below thalamus. So we have epi and hypo, above and below thalamus. So let's have some map of first epithalamus, then we will be writing the important thing. This is the lateral section ना, साइड से काटा है ब्रेन को. देखो इस डायग्राम में ब्रेन को साइड से काटा हुआ है. अब देखो इस डायग्राम में कहाँ है एपिथैलेमस. दिस इज द एपिथैलेमस. pineal gland is the part of epithalamus. You can see this projection is epithalamus, है ना. And you can appreciate the diencephalon is all these three parts, thalamus, hypothalamus and epithalamus, है ना. Thalamus somewhere इधर, epi is somewhere above means anterior is also above. So this is the epithalamus part, just above you can say, and then this is the hypothalamus part. ठीक है, hypo is below thalamus. So I've said that anterior, it's not anterior, it's posterior, है ना. It's posterior to thalamus. You can see this is the anterior part, this is the posterior part. कैसे पता चलेगा आपको? Because cerebellum is present in the posterior side. So epithalamus is relatively above and hypo is below the thalamus. So the name, है ना. Now let's come to the next part. The function of this epithalamus, which you have just seen, is what? Have a projection known as pineal gland, and this pineal gland secrete an important hormone known as melatonin. एक चीज़ याद रखना, there is some difference between this melatonin and कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेलानिन. द मेलानिन कहाँ से आता है? मेलानिन आता है आपका स्किन में सेल होते हैं उनसे. कैसे? यदि हम मेलानिन का देखें तो पिट्यूटरी से आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH. ये MSH स्किन पे मेलानोसाइट्स पे काम करते हैं और वहाँ से आपका जो है आपका मेलानिन सिक्रीट होता है. एंड दिस मेलानिन इज़ द पिगमेंट ड्यू टू विच वी हैव द कलर, है ना. ज़्यादा है तो डार्क पिगमेंटेशन, कम है तो फेयर पिगमेंटेशन, है ना. इफ़ इट इज़ मोर देन इट विल बी डार्क पिगमेंटेशन, and if it is less then it is fair pigment. So it has nothing to do with this epithalamus. this याद रखना, this melanin has nothing to do with melatonin, है ना. बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं. So this is melatonin which is coming from the epithalamus. Now the function of melatonin is it controls basal metabolic rate of the body. Basal metabolic rate of the body. What is BMR? आप सो रहे हैं, स्टिल द बॉडी इज फंक्शन, आपकी बॉडी अभी भी काम कर रही है ना. तो दैट बेजल थिंग, दैट मिनिमम लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन विच इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी. सो दैट मिनिमल लेवल ऑफ द मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ, दिस इज नोन एज BMR. Then biological clock. What is this biological clock now? Also known as circadian rhythm. क्या है ये? देखो, यदि आप सुबह अलार्म लगा के ना सोएं और यदि आप रेगुलर एक ही टाइम पे सोते हैं और जगते हैं तो आपकी आंख सुबह अपने आप उस टाइम पे खुल जाएगी, है ना. यदि आप एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो रात में जब मान लो आप 11 बजे सोते हैं तो 11 बजते अपने आप आपको नींद आने लगेगा. दिस इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक इन विच द बॉडी इज फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग. दिस इज सर्केडियम रिदम. वन ऑफ द कॉज इज दिस मेलाटोनिन, हाँ. And light inhibit the production of this melatonin, hence we always suggest that the light should be off while you are
sleeping, because you can see that melatonin is important for so many function. Next function देखो, this is function number 1, this is function number 2. next function is it regulate menstrual cycle. it regulates menstrual cycle, है ना. so in female the menstrual cycle regulation is by this. then it also boosts the immunity, it also helping in the immune system. and then again you can see the pigmentation part. एक चीज़ ध्यान रखो ना, पिगमेंटेशन में द स्टोरेज उल्टा. आपने ऊपर क्या देखा था, if melatonin is more the function will be the person will have darker complexion, है ना. less है तो fair complexion, इधर उल्टा. so it's antagonist of मेलानिन. यदि ये ज़्यादा है तो आपका फेयर पिगमेंटेशन होगा, है ना. तो दिस इज एपिथैलेमस, जिसमें पिनियल ग्लैंड इज द प्रोजेक्शन एंड जहाँ से मेलाटोनिन आ रहा है और ये काम है उनके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द थैलेमस. अगेन फर्स्ट सी सम डायग्राम, देन वी विल सी दैट हाउ इट्स मेकिंग द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड हाउ इट इज़ रेप्ड बाय द सेरिब्रम. ये तो आपका थैलेमस का नॉर्मल टाइप है. so I will show you the diagram. 1 minute, let me see the slides. yes, ये देखो, इस डायग्राम में आओ. so this is the diagram. देखिए, दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल. देखो इन्होंने लेबल कर रखा है, दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल. कौन सा सेक्शन है, इस बार ब्रेन को आपने आगे से काटा है ना. वेंट्रिकल हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट इट्स कैविटी इनसाइड द ब्रेन इन विच CSF इज सर्कुलेटिंग. तो ये थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ, यानी इधर और इधर क्या है, थैलेमस है ना. दिस इज थैलेमस, है ना. तो यही इन्होंने बोला है कि लेटरल पार्ट ऑफ द, देखो दिस इज समवेयर, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल और यहाँ पे आपका लेटरल वॉल जो है वो आपका थैलेमस बना रहा है. देखो दिस इज थैलेमस, है ना, लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, इसमें भी देख सकते हो आप, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल. सो इसके आजू बाजू जो होगा वो थैलेमस होगा, है ना. आई थिंक आपको आया होगा समझ में. दिस इज NCERT डायग्राम. देखो थैलेमस सिटिंग लेटरल टू द थर्ड वेंट्रिकल, इसके उस साइड. ये लेटरल व्यू में एक साइड से थैलेमस दिख रहा है तो वेंट्रिकल नहीं दिखेगा. सामने से आप देखोगे तो दिखाया था मैंने, सामने से आप यदि मैप देखो, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है. मैं कलर हटा रहा हूँ, ये थर्ड वेंट्रिकल है देखो, और उसके दोनों साइड की ये जो पार्ट है ना, ये थैलेमस है. ठीक है. सो इट इज़ फॉर्मिंग द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. अभी हम अपने मेन स्लाइड पे आ सकते हैं थैलेमस के. सो लेट्स कम टू थैलेमस पार्ट. दिस वाज द स्लाइड जो कि हम डिस्कस कर रहे थे. सो इट फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. और आपने देखा होगा, ये मान लो थर्ड वेंट्रिकल आ रहा है और इधर थैलेमस है, तो ये दोनों साइड्स क्या है, ये दोनों साइड क्या है, सेरिब्रम है ना. तो वही बोला है कि रेप्ड बाय द सेरिब्रम, दोनों साइड इट इज़ रेप्ड बाय द सेरिब्रम, है ना. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस. दिस इज नोन एज रिले सेंटर. मतलब क्या, any sensation which is coming from the body first will go and will terminate to the thalamus, and from thalamus the relay of this sensation will occur to the cerebrum or wherever it is going or to the destination. तो it is a relay center, मतलब ये रिले करा रहा है, चीज़ों को रिसीव कर रहा है फिर सिग्नल भेज दे रहा है. दिस इज द रिले. आइए, दिस डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट्स जस्ट फॉर एक्सपोजिंग योर सेल्फ कि ऐसा कुछ होता है. देखो दिस इज़ द ब्रेन, ऐसे बिना काटे हुए रखा है और ये अंदर की चीज़ को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके दिखा रहा है कि यदि आप पूरा ब्रेन निकालोगे तो थैलेमस कहाँ बैठा होगा. ठीक है. अब इसको कट किया है तो ये देखो, दिस इज द थैलेमस, है ना. ये थैलेमस देख सकते हो आप, इट इज़ रैप्ड बाय द सेरिब्रम. दोनों साइड से इट इज़ रैप्ड बाय द सेरिब्रम. इसमें थर्ड वेंट्रिकल क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि लेटरल व्यू है ना. वेंट्रिकल उसके पीछे बैठा होगा, इधर बैठा होगा वेंट्रिकल, है ना, ये लेटरल है. अब देखो ये थैलेमस का यदि आप डायग्राम देखो, इट हैज़ मैनी न्यूक्लियाई. ये देखो पुलविरल, मीडियल जेनिकुलेटर, लैटरल जेनिकुलेटर. M4 म्यूजिक, ये ना साउंड को कंट्रोल करता है. L4 लाइट, ये ना लाइट को कंट्रोल करता है. ये सब आपको नहीं जानना इस लेवल पे, जस्ट फॉर एक्सपोजर कैसे कुछ होता है. देयर आर मेनी न्यूक्लियस एंड ईच न्यूक्लियस हैव सम स्पेसिफिक वर्क कि कौन सा सिग्नल रिसीव करेगा और कहाँ भेजेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला लैटरल जेनिकुलेटर विल रिसीव द लाइट सिग्नल. ठीक है. चलिए,
नेक्स्ट वी आर कमिंग टू हाइपोथैलेमस। देखो हमने हाइपोथैलेमस के डायग्राम पहले भी देखे थे और अभी आप वापस देख सकते हैं, ये है हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो द थैलेमस। नाउ दिस हाइपोथैलेमस हैव मैनी न्यूक्लियस। देखिए मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ फिर लिखूंगा। देखो इट हैज़ मैनी न्यूक्लियस। दिस इज, यहाँ पे था ना थैलेमस, याद आ रहा है, ये थैलेमस था और इसके नीचे हाइपोथैलेमस था। नाउ सी, ये लेटरल व्यू, इसका मैग्नीफाई करके दिया। अब आपको इन न्यूक्लियस के नाम नहीं याद रखते हैं, आपको नीट यूजी में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। दैट द हाइपोथैलेमस इज अटैच्ड टू पिट्यूटरी ऑल्सो। आपको याद आ रहा है, हाइपोथैलेमस इट अटैच टू पिट्यूटरी, इंडोक्राइन के चैप्टर में हम देखेंगे, है ना। यदि आपने अभी तक पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे। बाई वॉट, बाई इनफंडिबुलम और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी हैव एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, टू सेगमेंट। The anterior pituitary is attached with hypothalamus by portal system. What is portal system? Portal system is एक बार कैपिलरी हाइपोथैलेमस में बना एंड वापस दोबारा आके कैपिलरी यहाँ पे। सो फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी ट्वाइस इन टू डिफरेंट ऑर्गन, है ना, एंड देन इट विल गो टू द हार्ट। अदरवाइज कैपिलरी शुड बी फॉर्म्ड वंस। इन पोर्टल सिस्टम कैपिलरी विल फॉर्म ट्वाइस, तो दो बार कैपिलरी बना। सो दिस इज पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन? इट इज रिसीविंग द regulating hormone from hypothalamus and releasing this regulating hormone to the pituitary, है ना। so this is the anterior pituitary. posterior pituitary जो हमारे यहाँ कंसर्न की बात है वो समझिए अभी। now what is this posterior pituitary and how it is related with the hypothalamus? now the hypothalamus is sending the neuronal projection, ये न्यूरॉन के प्रोजेक्शन को पीछे भेजता है ना। so it is attached with hypothalamus by neuron. Hypothalamus do synthesize some hormone and store these hormone in the posterior pituitary. And what are those hormone? They are oxytocin and ADH, antidiuretic hormone. oxytocin का फंक्शन क्या है? contraction of smooth muscle, ejection of milk. ADH एंटी डायूरेटिक, नाम से पता चला, डायूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन का एंटी है ना, ये यूरिन फॉर्मेशन रोकता है। सो दीज टू हार्मोन्स दे आर बीन फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस एंड फ्रॉम हाइपोथैलेमस दे विल बी द हाइपोथैलेमस इज सेंडिंग दिस हार्मोन वेयर? टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज सेंडिंग दिस हार्मोन टू द बॉडी, है ना। अब इसमें आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। क्या याद रख सकते हैं आप? देखो आपको इस लेवल पे इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, मैं याद रखता हूँ। ओम प्रकाश, ओ एंड द पी वर्ड इज व्हाट? पी वर्ड सजेस्ट दैट पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई is one of the nuclei of hypothalamus which synthesize oxytocin. एंड वैसे ही एडीएच के लिए सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इज द न्यूक्लियाई विच सिंथेसाइज एडीएच। हालांकि 5/6 of oxytocin is from paraventricular nuclei whereas 1/6 is coming from supraoptic. वैसे ही 5/6 ADH is from supraoptic and 1/6 is coming from paraventricular, है ना। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है बट मेनली ऐसा है। तो ये दो न्यूक्लियाई देखो, हो सके तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, हालांकि इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देखो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड देन सुप्राकाइजमेटिक न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ना व्हाट इज काइजमा वर्ड वी विल सी लेटर दैट व्हाट इज काइजमा हम बाद में देख लेंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ कि एक काइजमा वर्ड आया, ठीक है जी। तो एक तो आपको हाइपोथैलेमस के बारे में ये याद रखना है। दूसरा देखो, हाइपोथैलेमस हैज मैनी इम्पॉर्टेंट सेंटर। जो बार बार आता है आपके एग्जाम में वो है थर्मो रेगुलेशन का सेंटर है इसके बाद के पास। इसके बाद सेटाइटी मतलब पेट भर गया, आप खाना नहीं खाना, सेटाइटी सेंटर है यहाँ। हंगर सेंटर यानी सेटाइटी का उल्टा, भूख लगेगा तो यहीं से पता चलेगा। थर्स्ट सेंटर मतलब प्यास लगना, थर्स्ट सेंटर। एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ बीइंग आल्सो कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस ओनली। देयर आर मल्टीपल सेंटर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो एंटीरियर टू द हाइपोथैलेमस यानी हम पीछे के डायग्राम पे जाते हैं थोड़ा। एंटीरियर टू हाइपोथैलेमस मतलब यहाँ पे कहीं देखो, ये पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है ना हाइपोथैलेमस। यू कैन अप्रिशिएट नाउ, दिस इज पिट्यूटरी। देखो मैं इंक हटा रहा हूँ, आप देखिए एक बार, देखिए पिट्यूटरी सिटिंग डाउन, है ना। एंड यहाँ पे ये एंटीरियर पार्ट है, तो यहाँ से कहीं आई से ना ऑप्टिक नर्व आ रहे हैं और वो ऑप्टिक नर्व आपस में क्रॉस करते हैं।
So anterior to hypothalamus you have crossing of optic nerve and that crossing is known as optic chiasma. So what is chiasma? Chiasma is the crossing of the optic nerve. ठीक है. सिमिलरली हाइपोथैलेमस के पीछे मेमिलरी बॉडी बैठी हुई है ना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमिलरी बॉडी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमिलरी बॉडी मैं बताता हूँ आपको. देखो दिस इज द मेमिलरी बॉडी. पोस्टीरियर पार्ट में बैठा हुआ है. देखो पोस्टीरियर पार्ट में बैठा है. ये देखो ऑप्टिक नर्व जो आके यहाँ क्रॉस करेगा ऑप्टिक काइज में बनाएगा है ना. यू कैन सी द पिट्यूटरी ग्लैंड हैंगिंग फ्रॉम देयर है ना थ्रू इनफंडिबुलम. ये सारी बातें हमने की थी. ठीक है जी. अभी देखो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेमिलरी बॉडी. मैं याद रखता हूँ HMT की पहले वॉच कंपनी थी. ये इंडियन कंपनी थी. ये अभी बंद हो गई है. H फॉर हाइपोथैलेमस, M फॉर मेमिलरी बॉडी एंड T फॉर थैलेमस. ये तीन लोग मिलके बनाते हैं मेमोरी साइकिल. मिलके बनाते हैं मेमोरी साइकिल और मेमोरी सर्किट. यानी आप जो भी रिवाइज करते हैं बार बार ये तीनों के थ्रू ये बार बार सर्कुलेट होता है और साइनेप्स के लेवल पे इसका पोटेंशिएशन होता है. पोटेंशिएशन मतलब बार बार साइनेप्स से ACH सेम टाइप का ACH सेम इम्पल्स में निकलता है. वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है. सो फॉर कन्वर्टिंग द स्मॉल टर्म मेमोरी और एनी मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी आप जब चीज़ों को रिवाइज करते हैं क्या होता है इसी सर्किट में चीज़ें बार बार सर्कुलेट होती है और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. सो मेमिलरी बॉडी इज़ द वन पार्ट ऑफ दिस सर्किट. ठीक है जी. आइए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा. एपिथैलेमस के बारे में आपने बोला था. पिनियल ग्लैंड एपिफाइसिस सेरेब्राई द अदर नेम. इट ऑल्सो कंट्रोल द सेक्शुअल मैच्योरिटी है ना. एंड इसलिए एक क्वेश्चन आएगा दैट ब्लाइंड पर्सन दे गेट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है टाइम से पहले प्यूबर्टी का आना है ना. ब्लाइंड में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ जाता है. क्यों? बिकॉज दैट रेगुलेशन ऑफ मेलाटोनिन इज नॉट प्रेजेंट देयर एंड सो द मेलाटोनिन इज नॉट देयर टू रेगुलेट द सेक्शुअल मैच्योरिटी. ठीक है. थैलेमस रिसीव ऑल सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑल पार्ट. ठीक है जी. देन वी हैव हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस देखो बॉडी टेम्परेचर ईटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग इज हियर. ठीक है. ऑप्टिक काइजमा इज प्रेजेंट एंटीरियरली. ठीक. And then we have this mammillary body sitting posterior part. Already ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया है. Now one thing which we are left with that is limbic system. देखो ये hypothalamus control ऑलरेडी बोला thermoregulation behavior endocrine control biological clock ANS control है ना. Now what is this limbic system? See what is limbic system. इसमें से आपको ज़्यादा देख के परेशान मत हो. इस डायग्राम को मैं बार बार बोल रहा हूँ. डायग्राम वही आते हैं आपके एग्जाम में नीट UG में जो NCERT ने दिया है. तो जो एक ही डायग्राम जो है जो NCERT ने दिया है वो हमने पिछले लेक्चर में किया था. मैं वापस दिखा रहा हूँ. यही सिर्फ डायग्राम NCERT ने दिया. आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए. बाकी जितने भी डायग्राम्स हम कर रहे हैं दे आर जस्ट फॉर विजुअल मैप. देखो लिम्बिक सिस्टम यदि आप देखेंगे तो लिम्बिक सिस्टम इट गवर्न्स ऑल द इमोशनल एस्पेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी एवरीथिंग कंट्रोल बाय लिम्बिक सिस्टम. देखो एमिगडेला इट्स अ न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी. तो ऐसे कई कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी बैठे हैं. ये देखो आपका मेमिलरी बॉडी है ना. सो ऐसे कई आपके न्यूक्लियस बैठे हैं आपस में एंड दे आर देखो इट प्रेजेंट इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर amygdala hippocampus and they are forming what limbic system. ठीक है. and they regulate all the sexual behavior expression of emotion motivation. ये सब सिर्फ इतना याद रखो. डिटेल इतना सारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा. आपके लिए सिर्फ इतना पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है. सो फ्रेंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द फोरब्रेन का olfactory tract part and cerebrum part. In this lecture we have seen the diencephalon that is the epithalamus, thalamus and hypothalamus. Epithalamus pineal gland melatonin, thalamus the relay center and hypothalamus have all the important control of the body. ठीक. Hence we have completed the forebrain. Now we will start the midbrain in the next lecture. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. So please go to the channel, like it, subscribe it.